I have already tweeted in some detail, but let me very briefly recap. The first principle of Supreme Court judgments is not to politicize them, not to draw them in the political arena. Unfortunately, the Bhakts appear to be doing exactly that. All kinds of compliments are being heaped upon the ruling party, the Prime Minister. I can understand the Bhakts doing it in the political arena, but please don't attribute these adjectives which are not there in the judgment. That's point number one. Point number two, remember what the judgment is and what it should be, and everybody should bow down to a Supreme Court judgment. It arose from findings by an SIT that A, there was no conspiracy, and B, that there was bad violence, but it was spontaneous and not part of an orchestrated conspiracy, and C, that some police officers who had given statements trying to implicate the Honorable present Home Minister and the present Prime Minister were not even present at that meeting. Now, these 3 points have been held by the Supreme Court in favor of the SIT by upholding the SIT's conclusions. That's all. Apparently, the Bhakts are going all over town saying, "Tusi great ho," as if Supreme Court has said, "Tusi great ho." That, I submit, is not right. In fact, it is not right for any of us to draw the Supreme Court into that arena. Remember, individual culpability has been established. Many persons have been accused of and some have been convicted of murder in the sad episodes in Gujarat in the early 2000s. All that this judgment was about was that was there a larger conspiracy, or were the statements of these police officers about high functionaries, then Chief Minister, etc., correct or not? That has been nullified. Lastly, I want to add that para 88 of that judgment is also being bandied around. It is an indictment, no doubt, but I would submit with respect of 3 categories. One, of those police officers who virtually are found to have lied about their presence. Without being present, by being absent, they were still lying. Second, those comments are meant about the relentless pursuit of this litigation by the Zakia family, but of course the widow had made it clear that she would persist. And third, it's about disgruntled officers, disgruntled elements associated with these 2 first elements. Beyond that, to read para 88 as a general indictment of the general political class or of anyone who spoke in favor or against the issues of that time would be quite ridiculous, erroneous, not borne out by para 88, and indeed would be a negation of democracy where healthy discussion is never prevented. But sir, he's also accusing, Amit Shah has also accused Congress party for favoring NGOs, Teesta Sitalwar. He has also said that Zakia Zafri was working on the behest of someone else. We have got the judgment. I have said what I have said, because when I give you a short answer, my earlier answer gets wiped out. Does the judgment say anything about the Congress? Does the judgment say that the persons who were disgruntled elements were associated with any political party by naming the Congress? These are gratuitous, avoidable, wrong additions to a judgment by persons interested in having political access to grind. सर हिंदी अब में मैं प्लीज सर, देखिए, मैंने इस मुद्दे पे विस्तृत रूप से ट्वीट कर दिया है. मैं बहुत संक्षेप में अपनी ट्वीट्स दोहराना चाहता हूँ. पहला पक्ष और पहलू ये है कि कभी भी किसी को, आप हो, मैं हूँ, राजनीतिक पार्टी ए हो, बी हो, सी हो, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को उनका राजनीतिकरण करना भर्त्सना योग्य है. उनको राजनीतिक अरीना में घसीटना गलत है. हर प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं एक पूरा भक्त समुदाय, जो समझता है कि उच्चतम न्यायालय ने हर प्रकार की क्लीन चिट या बधाई दी हो सत्तारूढ़ सरकार को. ये गलत है. मैं सिर्फ इस बात का विरोध कर रहा हूँ. इसके लिए जानना ज़रूरी है कि हम इस निर्णय का क्या परिधि थी, क्या बाउंड्री थी, क्या स्कोप था, क्या व्यापकता थी.
ये बड़ा सरल था, दो मुद्दों पे था। एक, इसने एसआईटी के निर्णयों को अपहोल्ड किया, सही माना है इस निर्णय ने। एसआईटी ने कहा था कि ये वहाँ पर कोई साजिश का परिणाम नहीं था, लेकिन एक स्वाभाविक आक्रोश का उत्कर्ष था, जिसके अंतर्गत ये कई सारी वारदातें हुई थी। ये भर्सनीय हैं, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी, एक बनाया हुआ षड्यंत्र नहीं था। दूसरा, जो एसआईटी ने कहा है, जिसका एंडोर्समेंट किया है उच्चतम न्यायालय ने, कि जो पुलिस अफसर, कई नाम लिए गए हैं जो सीनियर वरिष्ठ पुलिस नेता थे, जिन्होंने ये कहा कि आज के माननीय प्रधानमंत्री या आज के माननीय गृह मंत्री वहाँ पर थे मीटिंग में, या उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा, ये गलत है, क्योंकि ये पुलिस अफसर वहाँ थे ही नहीं, और इसलिए ये बात गलत पाई गई है। तो दोनों मामलों में हम सबको नतमस्तक होना चाहिए उच्चतम न्यायालय के लिए। लेकिन उसके साथ ये नहीं कहा है उन्होंने कहीं, जो पैरा 88 का बार बार जिक्र हो रहा है, वो 3 लोगों के लिए है। एक इन पुलिस अफसरों के लिए, एक जाकिया परिवार के लिए जिसने बार बार इसको किया, इस केस को दशकों तक, 16 वर्ष तक। तीसरा, उन लोगों के लिए जो इन 2 तत्वों के साथ मिले थे। लेकिन कहाँ कहा गया है निर्णय में कहीं भी कि इसमें ये पार्टी आगे थी, कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। ये नहीं कहा गया कि इन तीनों तत्वों में से कोई भी इस प्रकार से किसी पार्टी से मिला था या कांग्रेस का नाम हो उसमें। तो ये बार बार ऐड करना, अपने मन से एक राजनीतिकरण करना, किसी को घसीटना, इसमें ये मैं समझता हूँ समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय है जिसमें हमको सब नतमस्तक होना है, उसकी परिधि समझ के, उसका सही व्यापकता और उसका सही मुद्दा समझ के। सर, एक सवाल अगर हम आपसे कर सके कि कांग्रेस पर ये भी हमला किया है अमित शाह ने कि अभी जो ईडी की पूछताछ हुई तो राहुल गांधी से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, देश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया। अमित शाह ने ये कहा कि प्रधानमंत्री चुप रहे और उन्होंने कानून का सम्मान किया, प्रक्रिया का सम्मान किया, न कि प्रदर्शन किया। तो तंज कसा पिछले दिनों कांग्रेस ने जिस तरह प्रदर्शन किया, उस पर क्या? अब माननीय प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे चुप्पी साधे रहते हैं, और कई ऐसे मुद्दों पे इतने प्रखर और इतने मुखर वक्ता हैं, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब देश में इतनी बड़ी अग्निपथ के ऊपर मुद्दा होता है, देश में इस प्रकार का विभाजन होता है, धार्मिक अविश्वास होता है इत्यादि, तो माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी रखते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है। और वैसे वो देश के बहुत महान एक प्रखर और मुखर वक्ता हैं। तो इस प्रकार से ये जनरल बातें करना, और अगर आप इस प्रकार के निराधार केस में 55 घंटे 5 दिन किसी व्यक्ति को रखेंगे, और गणतंत्र में, लोकतंत्र में आप इतना भी नहीं अनुमति देंगे, जो कि नहीं दी गई थी, कि आप अपने ऑफिस से 10 कदम आगे चल सकें, पुलिस आपको करीब करीब धक्के मार के बसों में डाल देगी, तो क्या ये गणतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नगण्य करने की प्रक्रिया नहीं है? और क्या आप समझते हैं कि इतना भी हक नहीं होना चाहिए? एक सार्वजनिक, एक पीसफुल एक जनादेश को सामने रखना, जनता के सामने अपना एक पक्ष रखना। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। बार बार नहीं, अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि जो आरोप उस वक्त लोगों ने लगाए थे, आज जब चीज़ साफ हो रही है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए उन लोगों को। निश्चित रूप से जो 2 तत्व बताए मैंने आपको, 3 तत्व पैरा 88 में, जिनके बारे में उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है, उनकी तरफ आमुख होकर बोले माननीय गृह मंत्री। 3 पक्ष बड़े साफ लिखे हैं पैरा 88 में। आप इसको जानबूझकर राजनीतिकरण कर रहे हैं कांग्रेस तरफ जाके, यही तो मुद्दा है पूरा। विश्लेषण अपनी जगह, अमित शाह ने एक जगह ये भी कहा सर कि कांग्रेस ने उन एनजीओ को, तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को, कहाँ लिखा है ये कहाँ लिखा है? तो उस पे क्या नहीं, जवाब तो देंगे? जवाब यही तो मैं कह रहा हूँ, राजनीतिकरण का मतलब क्या हुआ? निर्णय का आड़ लेकर उसका राजनीतिकरण करना। ये कहीं भी किसी परोक्ष रूप से भी उच्चतम न्यायालय ने लिखा है कि ABC ने इसका समर्थन किया? मैं कह सकता हूँ कि ये कई बीजेपी समर्थित ऐसे संस्थाएं हो सकती जिन्होंने समर्थन किया उनका। इसका कोई मायने है क्या? इसका कोई औचित्य है क्या?